Please read Luke 15th chapter, verse 8 and 9. लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 और 9 आज की सुबह के ध्यान के लिए पढ़ें। Luke 15th chapter, 8 and 9 verse. लूका का सुसमाचार 15 अध्याय का 8 और 9। Peter, what woman having 8 pieces of silver, if she use 1 piece, do not light the candle and wet the house and seek diligently till she find it. And when she has found it, she called her friends and her neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I had lost. यह कौन ऐसा स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खोए जाए तो वो दिया बार कर और घर झाड़ बुखार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। Praise be to God's name. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, in this verse, we read about the parables. यहाँ पे हम एक दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। You know, when Jesus Christ was ministering on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवा कर रहा था, for all the people, those who followed Jesus, he used to speak with them through the parables. जो कोई भी उसका अनुकरण करते थे उनको दृष्टांत के रूप पर बातें करते थे। He knew Jesus used to draw comparisons of this nature. He used to give examples of the nature. यीशु मसीह प्रकृति के साथ और उसके साथ तुलना करते हुए कई उदाहरण देते थे। And he used to give examples of the daily lives of people. मनुष्य के रोजाना जीवन का बारे में भी उदाहरण देते To थे। proclaim all the mysteries of the kingdom of God, he used to draw examples from so many other things. परमेश्वर के राज्य के बारे में कई बातों को कहने के लिए कई उदाहरण बोलते थे। And not only that, to make these spiritual truths more compelling and clear, he used to speak them with the parables. और परमेश्वर के राज्य की बातों को बहुत स्पष्ट रीति से बोलने के लिए कई दृष्टांत के तौर पर बोलते थे। These parables which Jesus spoke falls into so many categories. यीशु मसीह जो दृष्टांत बोले हैं वो कई प्रकार के बातों में हम उसको डाल सकते हैं। But particularly in Luke 15 chapter, we read about the 3 parables. लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में 3 दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते When हैं। we read the 15 chapter, whole chapter, we read about the 3 specific parables that Jesus is telling about. यीशु मसीह कहने वाले 3 दृष्टांत के बारे में लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 4th verse, he speaks about the lost sheep. और 4वें वचन में खोए हुए भेड़ के बारे में हम देखते हैं। 8th verse, he speaks about the lost coin. और 8वें अध्याय में 8वें वचन में खोए हुए सिक्के के बारे में हम देखेंगे। And verse 12, he speaks about the prodigal son. और 12 वचन में उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं। So the three parables falls into this Luke 15 chapter. और ये 3 दृष्टांत लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में And हम देखते all हैं। these 3 parables teach us the 3 things. और ये 3 दृष्टांत 3 बातों को सिखाता है। The lost sheep, खोए हुए भेड़, the lost coin, खोए हुए and सिक्का, the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र। These 3 parables teaches us the 3 things. और ये 3 दृष्टांत हमें 3 बातों को सिखाता First है। is repentance. पहले मन फिरा, Second is forgiveness of sins. दूसरा पापों की क्षमा, Thirdly, about the salvation. दूसरा उद्धार। So these 3, when explaining all these 3 things, he is explaining the mind of God that the salvation is offered to the mankind. और ये 3 बातों परमेश्वर की मनसा को प्रकट करती है कि मनुष्य जाति को प्रभु ने उद्धार दिया। When Jesus was explaining all these parables, जब यीशु मसीह सारे दृष्टांत को समझाते हैं through parables, he is explaining the mind of his Father. और ये दृष्टांत के द्वारा पिता की मनसा को प्रकट करता That है there is repentance, कि मन फिराव है and there is a forgiveness of sins, और पापों की क्षमा and there है is a salvation which is offered for you. और एक उद्धार है जो आपके लिए दिया जाता है। He is explaining them. You might be in a group of that lost sheep. आप एक खोई हुई भेड़ की झुंड में हो सकते He is हो। explaining that you might be in the experience of that lost coin. आप उस खोए हुए सिक्के की झुंड में भी आप हो सकते And he हो। says you may be that prodigal son. और तीसरा आप उस उड़ाऊ पुत्र हो सकते हो। It doesn't matter that which category you falls in. आप कौन से झुंड में गिरते हैं वो मायने नहीं But he रखता। says that there is always a coming back.
और उसमें हमेशा लौट आने का एक अनुभव He है। says there is a chance of coming back. वापस लौट आने का एक समय The है। lost sheep was found. और खोए हुए भेड़ को पाया The lost coin was found. और खोए हुए सिक्के को भी And this पाया prodigal son came back, repented. और वो उड़ाऊ पुत्र मन फिरते हुए वापस आया। So same thing is God is teaching us these days. इन दिनों में परमेश्वर यही हमें सिखाता है। Now, when I told you about these three parables. और इस 3 दृष्टांतों के बारे में मैंने कहा। But however, when we take this lost coin, the thing which we are going to consider in these days is about the lost coin. इन दिनों में हम ध्यान करने वाला विषय खोया हुआ सिक्का। When we consider this example, when we consider this parable of lost coin, and when we see this thing from the different angle, there are so many deeper truths we can learn from this. इस खोए हुए सिक्के के बारे में ध्यान करते हुए अलग-अलग दृष्टिकोण से देखने से हम कई बातों को ध्यान कर सकते There are हैं। so many deep revelations and spiritual meaning of this lost coin. इस खोए सिक्के के बारे में बहुत गहराई आत्मिक अर्थ है। Praise be to God's name. प्रभु के नाम You की know, स्तुति हो। in the custom which was prevailed in those days, उन दिनों में जो नियम चलता था, a married woman, a Jews, a custom which was prevailed in the Jews people, a married woman was given the 10 coin as a token. यहूदियों में ऐसा एक रीति चलता था जो एक शादीशुदा एक स्त्री को 10 सिक्के दिए जाते थे। It was like a wedding gift for them. उसके लिए शादी पे दिए जाने वाले तोहफे के मानद है। The 10 silver coins were given to the married woman in those days. उन दिनों में 10 चांदी के सिक्के शादीशुदा एक स्त्री को दिया जाता And you know है। what they will do? और क्या करते थे? These women, they will affix those 10 silver coins on a plate, and they will bind on their foreheads. और ये जो 10 चांदी के सिक्के अब एक प्लेट पे रखते हुए और उसको अपने माथे पर लगाते हैं। That shows that they are married to someone. उसका अर्थ ये दिखाता है कि वो किसी से शादीशुदा है। Now, besides the monetary value of these 10 coins, और ये जो चांदी के सिक्के के मूल्य, पैसे का मूल्य होने के अलावा, पैसे के मूल्य होने के अलावा, there are certain other things which are connected with these 10 silver coins. और ये 10 चांदी के सिक्के को और किसी बातों से भी तुलना कर There सकते are हैं। emotionals which are connected with these 10 silver coins. और ये 10 चांदी के सिक्के को कई भावनाओं के साथ भी तुलना कर There are सकते हैं। sentimental values which are connected with these 10 coins. और ये 10 सिक्के को कई भावनाओं से भी तुलना कर सकते And to हैं। lose one of those 10 coins in those days was so reproaching and distressing. और उस 10 सिक्के में से एक सिक्का खो भी देने से वो एक बहुत लज्जा की बात है। And there used to be a saying in those days, if you lose one of those coins, it will be a sign of a bad or evil occurrence. यदि एक सिक्के को होने से कोई बुराई होना या कोई बुराई होने का चिन्ह है। Therefore, these married women, they would be very diligent to keep all these 10 coins with them. और ये जो शादीशुदा स्त्री को अपना इस सिक्का को संभाल के रखना चाहिए। But for the unmarried in those days, they would bind a chain, a silver chain in their neck. जो लोग शादीशुदा नहीं है वे लोग अपने गले में एक चांदी का हार डालते हैं। Now this is the actual thing which happened in those days. उन दिनों में अक्षरिक तौर पर ऐसी बातें होती But हैं। how this thing is directed in our life, हमारे जीवन में इसका कैसे तुलना how करते these हैं? things are applicable in our life. हमारे जीवन में कैसा लागू है? See, spiritually speaking, this woman speaks about the New Testament church. आत्मिक रीति से ये जो स्त्री है कलीसिया को दिखाता है। In Revelation 12th chapter, we read about a woman which signifies this New Testament church. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं जो कलीसिया को दर्शाती है। For all the qualities which a church should have, we read in those verses that that woman had those qualities. और जो गुण इस कलीसिया रूपी स्त्री को होना चाहिए वही गुण वो स्त्री में भी थे। Today, we the spirit baptized people are the bride of Christ or the wife of Christ. हम जो बपतिस्मा लिए परमेश्वर की कलीसिया है, हम परमेश्वर की दुल्हन है। Revelation 21st chapter 9th verse says that we are the bride of Christ. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में हम देखते हैं कि हम मसीह के दुल्हन है। So when Jesus will appear in His glory, we will become His bride. जब यीशु मसीह अपनी महिमा में प्रकट होएगा तो हम उसकी दुल्हन होकर प्रकट होएंगे। Please read that verse, 9th verse. Revelation 21st chapter 9th verse. प्रकाशित वाक्य 21 का 9। And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife. फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे
उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। Now here the bride of Christ is shown. यहाँ पे मसीह के दुल्हन दिखाई जाती So है। we are the bride of Christ. हम मसीह के दुल्हन हैं। The Spirit baptized, the New Testament church is the bride of Christ. पवित्र आत्मा पाए हुए ये जो नए नियम की कलीसिया है, We are the bride of Christ. हम मसीह के दुल्हन हैं। So these 10 points, spiritually, they are given to us also. हमारे लिए भी 10 सिक्के दिए गए हैं। Praise be to God's name. प्रभु के नाम Now की this स्तुति। woman had these 10 coins, silver coins. ये जो स्त्री को 10 चांदी के सिक्के थे। Spiritually speaking, this silver signifies the redemption, the hope of redemption. आत्मिक तौर से ये जो चांदी है हमारा छुटकारे का आशा को दिखाता है। When we say the silver, spiritually it speaks about the redemption that God gives us. परमेश्वर हमें देने वाले छुटकारे को ही चांदी दर्शाता है। You know, when we receive Jesus as a personal Savior, जब हमें यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता by the स्वीकार blood of करते हैं, that Jesus Christ, our Savior, our souls were redeemed. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे प्राण छुड़ाए गए। Now we are waiting for the redemption of our body. हमारे देह के छुटकारे के लिए हम इंतजार करते In हैं। Ephesians 4th chapter and verse 30 when we read, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 30वें वचन we पढ़ते read हैं। about the Spirit of God that is given to us, whereby we are sealed for the day of redemption. परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के दिन के लिए हमारे छाप लगाया है। Read that verse. वचन पढ़िए। Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of the redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Now we are sealed for the day of redemption by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप लगाया Dear है। people of God, we need to understand that already our souls are redeemed by the blood of Jesus Christ. इस बात को हम समझना चाहिए कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे प्राण छुड़ाए गए हैं। Now we are waiting for the redemption of our body. हमारे देह की छुटकारे के लिए भी हम इंतजार And that करते is हैं। only possible by the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये See, when संभव we है। have the Spirit of God, our body will be transformed at the coming of our Jesus Christ. ये आत्मा हमारे अंदर होने से यीशु मसीह के आगमन में हमारा देह So that's why we should not grieve the Holy Spirit which we have possessed. इसलिए हमें पाए हुए पवित्र आत्मा को हम शोकित नहीं करना Because चाहिए। if we grieve the Holy Spirit, we will not be transformed and our body will not be redeemed. यदि हम पवित्र आत्मा को शोकित करने से हमारा शरीर को रूपांतर नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा। Praise be to God's name. प्रभु के नाम Now की coming स्तुति। back to that parable, और इस दृष्टांत में वापस आने में we read about the coins, 10 coins. हम 10 सिक्के के बारे में हम पढ़ते But हैं। out of the 10 coins, she had lost 1 coin. उस 10 सिक्कों में से एक सिक्का उसने खो दिया। This 10 coins speaks about the good qualities that God has given us. परमेश्वर हमें दिए हुए अच्छे गुण को दर्शाता है। Now we can compare this woman with the church of Ephesus. एफिसियों की कलीसिया के साथ इस स्त्री का हम तुलना कर सकते In हैं। Revelation 2nd chapter, from 1st onwards, we read about the church of Ephesians. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहले वचन से एफिसियों की कलीसिया के बारे में हम देखते Now हैं। we compare this woman with the church of Ephesus. इस स्त्री को हम एफिसिय कलीसिया के बारे में हम तुलना कर सकते When we हैं। read about the church of Ephesus, they had the 10 good qualities in them. उनकी उस एफिसियस कलीसिया में 10 अच्छे गुण थे। But when God was giving them the warning, God was telling them that you have lost something in your life. जब परमेश्वर उनको चेतावनी दे रहा था तो परमेश्वर ने कहा तूने कुछ बातों को खो दिया। They were preserving all the 9 other coins, but they had lost one of their coins in their life. उनके जीवन में दूसरे 9 सिक्कों की रखवाली कर रहे थे पर एक सिक्का खो दिया। So this 10 silver coins speaks about the good qualities that God has given us. ये 10 चांदी के सिक्के परमेश्वर हमें दिए हुए अच्छे गुण के बारे में So we दर्शाते हैं। as a church of God, we as the people of God need to preserve these 10 good coins at any cost. हम जो परमेश्वर के लोगों किसी हालत में इस 10 सिक्के को संभाले रखना। Now reading from 2nd chapter, 2nd verse, दूसरे वचन से पढ़ने में Revelation 2nd chapter, 2nd to 4 when we read, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय से 4 वचन तक we पढ़ने read about में the 9 good qualities. उसमें 9 अच्छे गुण को देखते हैं। Read that verse, please. I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee. Read 6th verse also. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left my first love. Because this thou hast
that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तू देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर झूठा खाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पर तुझमें ये बात तो है कि तू निकोलियस के कामों को घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता Now praise be to God's name. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Here we read about reading from verse 2, we read about the 10 good qualities of this church. दूसरे वचन से हम नीचे पढ़ने में 9 अच्छे गुण के बारे में हम देखते हैं। We compare these 10 qualities with the 10 good coins, silver coins that God has given us. परमेश्वर दिए हुए 10 चांदी के सिक्के के साथ इसका तुलना कर सकते हैं। We as a people of God, God desires from us, or God expects from us that we need to preserve all these good qualities till He comes. परमेश्वर के आगमन कर इस 10 अच्छे गुण को संभालने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। Now one by one we'll consider what does this 10 coin shows. और ये एक-एक करके हम ये 10 सिक्के क्या है करके So हम these ज्ञान 10 करेंगे। qualities, we read about the 10 qualities in that church. उस कलीसिया में 10 अच्छे गुण को हम देखते Now हैं। reading the first coin, that is the first quality, God says, I know thy works. पहला जो गुण है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। 3 things are written there. वहाँ पे 3 बातें लिखे हैं। First thing says, I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता And he हूँ। says, I know thy labor मैं तेरे परिश्रम को जानता and हूँ thy patience. और तेरा धीरज। So these are the 3 first coins that we need to have in our life. हमारे जीवन में होने वाले ये 3 सिक्के हैं। First 3 coins. These are the first 3 coins. Yes. This classified into first 3 coins. ये 3 विषय जो लिखे हैं, ये 3 सिक्के के साथ उसका तुलना God करें। says, I know thy works. मैं तेरे कामों को जानता Then he हूँ। says, I know thy labor. मैं तेरा परिश्रम को And I जानता know thy हूँ patience also. और तेरा धीरज को भी मैं जानता हूँ। That in other words, और एक शब्दों में first coin is works. पहले काम, Second coin is labor. दूसरा परिश्रम, Third coin is patience. तीसरा धीरज। So God says, I have given you the 10 coins. Out of that, first 3 we'll consider now. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे 10 सिक्का दिया, उसमें से 3 विषय को अभी हम ध्यान करेंगे। Reading from 1 Thessalonians, 1st chapter and verse 3. पहला थिस्सलुनीके पत्री पहला अध्याय का 3रा वचन। Saint Paul says about these 3 things. संत पौलुस इस 3 विषयों के बारे में कहता He है। speaks about the works, वो कामों के बारे में कहता then है, he speaks about the labor, दूसरा परिश्रम के बारे then he में, speaks about the patience. तीसरा धीरज के बारे में Please कहता है। read 1 Thessalonians, 1st chapter, verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। Now when Saint Paul says that I know, here Saint Paul says that the work of faith, the labor of love and patience of hope. यहाँ पे विश्वास की काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी आशा। Now when God says that I know thy work, he says that I know the works of thy faith. जब परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, उसका मतलब यह है कि मैं तेरे विश्वास के कामों को जानता Now हूँ। when God says I know thy labor, he speaks about the labor of your love. जब परमेश्वर परिश्रम के बारे में कहता है, वो प्रेम का परिश्रम के बारे में कहता When he है। says about thy patience, it's a patience of hope. जब धीरज के बारे में वो कहता है कि आशा का धीरज। These are the 3 first points that we need to preserve in these इन days. दिनों में हम संभालने वाले ये 3 सिक्के बहुत जरूरी है। One by one we'll consider these points. एक-एक करके इस विषय को हम ध्यान करेंगे। The works of faith. विश्वास की काम। See, in James 2nd chapter we read about the works of faith. Without the works, faith is dead, and without the faith, works are dead. याकूब की पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं विश्वास बिना क्रिया, क्रिया बिना विश्वास मृतक है। Read that last verse, James 2nd chapter, verse 26. याकूब की पत्री 2 अध्याय का 26 वचन। For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. निदान जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ So है। here we read the faith without works is dead. विश्वास बिना कर्म मरा हुआ When है। God says that I know thy works,
जब परमेश्वर कहता है मैं तेरी क्रियाओं को जानता हूँ, He speaks about the faith which we have in our life. हमारे जीवन में हमारे विश्वास के बारे में वो कहता God है। knows our faith. परमेश्वर हमारे विश्वास को जानता We है। need to examine our life in these days. इन दिनों में अपने जीवन को हम जांच We के need to देखना चाहिए। examine our faith in these days. इन दिनों में हमारे विश्वास को हम जांच के देखना चाहिए। Our faith, our works should be according to our faith, and our faith should be according to our works. हमारे विश्वास के अनुसार हमारे कर्म और कर्म के अनुसार हमारा विश्वास Because होना चाहिए। without faith, the works are dead, and without the work, the faith is dead. क्योंकि क्रिया बिना विश्वास बिना क्रिया मृतक है। When we take the example of Abraham, इब्राहिम को उदाहरण ले he लीजिए। had the faith in his life, उसके जीवन में विश्वास था। and he worked accordingly. उस विश्वास के अनुसार उसने From काम किया। 17th verse onwards, when we read, same chapter, उसी James अध्याय। 2nd chapter, verse 17 onwards, when we read. उसी पुस्तक के उसी अध्याय के 17 वचन से पढ़ने से Read that verse. Even so, faith, if it hath not worked, is dead being alone. वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। Read 21st verse. What was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? Now, when we take the example of Abraham, he was justified through his faith, through his works. इब्राहिम का उदाहरण लेने से अपनी क्रियाओं के द्वारा वो धर्मी ठहराया You know गया। what was the moment that he was called the father of faith? कब वो विश्वास का पिता होकर कहलाया गया? Anybody? What was the moment when God tagged him as a father of faith? विश्वास का पिता है करके परमेश्वर ने कब उसको ऐसे कहा? When God testified that you are the father of faith. तो विश्वास का पिता है करके परमेश्वर ने कब गवाही दी? You know, when he offered Isaac as a sacrifice unto God. जब उसने इसहाक को बलिदान होकर जब चढ़ाया। Before that, he didn't have that faith in his life. उससे पहले उसे ऐसा विश्वास नहीं था। He had that faith in his life, but his faith was so little. उससे पहले उसे विश्वास था पर उसका विश्वास छोटा था। That was the moment when he offered Isaac as a sacrifice unto God. That was the moment when his faith was perfected in God. जब उसने इसहाक को बलिदान होकर चढ़ाया तब वो विश्वास का पिता कहलाया And गया। thereafter he was called the father of faith. उसके बाद वो विश्वास का पिता होकर He कहलाया had गया। the faith and he worked accordingly. उसे विश्वास था और उसके अनुसार उसने काम And किया। what the word of God says, he was justified by his works. प्रभु का वचन कहता है उसके क्रियाओं के द्वारा धर्मी ठहराया गया। We need to work according to our faith. हमारे विश्वास के अनुसार हम काम करना We चाहिए। may utter so many big things in our life from our mouth, but we are not working accordingly. हम बड़ी बड़ी बात हमारे मुंह से कहते हैं, हम विश्वास के अनुसार काम नहीं करते। Testifying in the presence of God about our spiritual life and about our hope and pressing forward in our spiritual life, we may give so many big statements, but we are not working accordingly. Our works are not according to our faiths. हम बड़ी बड़ी गवाही देते हैं कि हमारे विश्वास के जीवन के बारे में और हमारे आत्मिक जीवन की प्रगति के बारे में, पर हमारे विश्वास के अनुसार हम काम नहीं करते। Yes, we desire to change ourselves, but we are not working accordingly. हम अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, उसके अनुसार हम काम नहीं In our करते। mind, we utter those things. I want to change myself. I want to change myself. I want to become a spiritual man. I want to become spiritual. We are uttering these things in our mind, but works are not seen accordingly. हमारे मन में हम इस प्रकार कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदला हुआ व्यक्ति होना चाहता हूँ, और हमारी क्रियाओं में इन बातों को हम नहीं देखते। That's why our faith is not bringing any good change in our life. इसलिए हमारा जो विश्वास है कोई अच्छी बदली को नहीं लेकर आता। Precisely, we may have a good faith in us, हमारे अंदर एक अच्छा विश्वास तो हो सकता but है, that is not followed with the works. और उससे क्रियाओं के साथ वो नहीं The होता works है। of faith are not shown in our life. हमारे जीवन विश्वास के काम हम नहीं देखते हैं। We are not showing. We are showing the faith, but we are not showing the works. हम विश्वास को तो दिखाते हैं, उसके साथ क्रियाओं को नहीं Praise be to दिखाते। God's name. There was a sister, there was a believer sister who was reading the Bible, एक विश्वासी बहन एक बार बाइबल पढ़ रही थी, and she read that verse that if you believe on me, you will tell this mountain to be cast into the sea, and it shall be done. और उसने ऐसा पढ़ा कि यदि तो विश्वास करे और इस पहाड़ से कहे कि उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो वैसा ही हो Now जाए। there was a big mountain before her house. उसके घर के सामने बहुत बड़ा पर्वत था। So one day she started praying. एक दिन ऐसा प्रार्थना कर रही She थी, had the faith. उसे विश्वास था, She had faith. उसे विश्वास था, Now she started praying. और उसने प्रार्थना Lord, की, according to thy word, हे प्रभु तेरे वचन के if thou अनुसार hast faith, a little faith, ये छोटा विश्वास भी हो तो you will tell this, you will command this mountain to be cast into the sea, and it shall be done unto you, you said.
परमेश्वर आपने कहा यदि तुझे विश्वास हो तो कहेगी कि ये पहाड़ जाके उखड़ के समुद्र में जा। Now I'm praying, oh Lord, this mountain should be removed from here. हे प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि ये जो पहाड़ यहाँ से हटाए जाना 5 चाहिए। minutes she prayed. 5 मिनट प्रार्थना किया। 5 minutes she prayed. 5 मिनट प्रार्थना किया। Then she sneaked through the window and saw mountain was there beside. उसने वो खिड़की में से खिड़की खोल के देखा, देखने से पहाड़ उधर ही है। Again 5 minutes she prayed and sneaked from the window. Again the mountain was there. 5 मिनट फिर से उसने खिड़की खोल के देखने से पहाड़ उधर ही है। We are praying, हम प्रार्थना तो करते हैं, but we are not seeing those things happening in our life. हमारे जीवन में ये बातें होते हुए हम नहीं देखते You know हैं। why? क्यों? We are not showing the works. हम क्रियाओं को नहीं दिखाते If we हैं। say something is done, we should believe that it's done. कोई बात हो गया करके हम विश्वास करने से वो वैसे ही हो जाना For चाहिए। example, उदाहरण के those who तौर came to Jesus for the deliverance and healing, पर यीशु मसीह के पास छुटकारे और चंगाई के लिए जो लोग आए, what was the words Jesus told to them? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? Be it according to thy faith. तेरे विश्वास के अनुसार तुझसे हो जाए। Go, thy faith has healed you. जहाँ तेरा विश्वास ने तुझे चंगा Now, किया। if that person had those doubts and disbeliefs in our life, that faith will not bring any change or deliverance in his life. यदि वो व्यक्ति को विश्वास और संदेह होने से उसके जीवन में कोई बदली नहीं लेके आएगा। Go, take up thy bed and walk. जा तो अपने खाट लेके चल फिर। Oh, I'm not able to walk. मैं चल नहीं पा रहा। I'm not able to walk. You are telling me to walk, but I'm not able to walk. The work is that you need to get up and walk. That is a faith. That is a work of faith that you need to show. उसने वो क्या करना चाहिए? उठकर अपने खाट लेके चल फिरना चाहिए। यही विश्वास का क्रिया है। Now God says to Abraham, sacrifice your son to me. ये जब परमेश्वर इब्राहिम से कहा तेरे पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे, Now he says, वो कहेगा anyhow you want my son, जब अपना मेरा पुत्र ही चाहिए ना, take his spirit and it will be yours. तो उसका आत्मा ले ले, वो तेरा हो जाएगा। Just send the heart attack and it will be yours. उसे हार्ट अटैक भेज दे तो वो तेरा हो जाएगा। Now to become a father of faith, he need to show the works of that faith. वो विश्वास का पिता होने के लिए वो विश्वास की क्रियाओं से He दिखाना है। believed that the God which gave me this son to me, he is able to give more sons to me besides this. जिस परमेश्वर ने मुझे ये पुत्र दिया, इसके अलावा और पुत्रों को दे सकता है, ऐसा उसे विश्वास। So he believed and worked accordingly. उसने विश्वास किया और ऐसा ही Dear काम people किया। of God, why we don't see things happening in our life? प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारे जीवन में काम होते Why हैं, we are not able to see the change in our life? हमारे जीवन में बदलियां क्यों नहीं We are देखते? praying precisely, we are praying, taking fasting, and we are praying for so many things. But why don't we see those things happening in our life? हम प्रार्थना करते हैं, उपवास लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में काम होते हुए हम Because क्यों नहीं we देखते? are not working accordingly. हम उसके अनुसार हम काम नहीं करते Now, हैं। for example, उदाहरण, in last Sunday, so many people they came unto me and they got prayed for me to God should help us to maintain this life of sanctity and God should help us to press forward in the spiritual life. पिछले सप्ताह कई लोग मेरे पास आते हुए ऐसे कहा कि इस आत्मिक जीवन को और इस शुद्धता को संभाले रखने के लिए प्रभु मेरी मदद करना Every youth God prayed for me. सब लोग आके प्रार्थना करा के गए। Every youth God prayed for me. सारे जवान आके प्रार्थना करवा But के गए। when you see their life today, they are not feeling in the spirit. They are not showing those works. They have faith, not showing the works. आज हम देखने से वो लोगों को विश्वास तो है, उस क्रिया नहीं दिखाते, आत्मा में नहीं भरते हैं। I want to change myself, but if I'm not doing the works accordingly, how that faith will bring change in my life? मेरे अंदर विश्वास है, बदलना चाहता हूँ, उसके अंदर अनुसार क्रियाएं नहीं होने से मैं कैसे बदलूं? So we are missing the works in our life. हमारे जीवन में इस क्रियाओं को हम खो You देते हैं। have faith. विश्वास तो We है, are preserving the faith. विश्वास को संभालते Yes, हैं। God is there to change me. परमेश्वर बदलने के लिए मेरे लिए प्रभु है। Some people say, God will do. God will do only when you will change yourself, when you work accordingly. परमेश्वर करेगा, प्रभु करेगा, जब तक तुम अपने आप को बदल नहीं पाओगे, प्रभु आपसे कुछ नहीं करेगा। Until you are not ready to change yourself, God will not do anything in your life. जब तक तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, प्रभु आपके लिए कुछ नहीं There are करेगा। certain decisions you need to take in your life to get change. तुम्हारे जीवन में बदलने के लिए कोई निर्णय लेना There are पड़ेगा। certain qualities that you need to change in your life in order to get change. बदलने के लिए तुम्हारे जीवन में कई गुण होना चाहिए। Lacking all these things in your life, you cannot change yourself.
having faith only in your life. ये सारी बातों की घटी रखते हुए सिर्फ विश्वास रखने से अपने आप को आप नहीं बदल So सकते। Abraham was justified because of his faith. इब्राहिम अपने क्रियाओं के द्वारा धर्मी ठहराए गए। Because of his faith and his works, he was justified before God. उसके विश्वास की क्रियाओं के द्वारा प्रभु के समूह में धर्मी So ठहराए when गए। God says, I know thy works, he speaks about the works of faith that we do in our life. परमेश्वर जब कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, वो विश्वास के काम है। Some people, they testify, God has delivered me completely. The boldly they say. कई लोग ऐसे हिम्मत से कहते हैं परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से छुड़ाया। Next moment, brother, I'm having a headache. I'm getting this thing. Brother, this thing. They speak about so many sicknesses. They just before that day, they have testified that God has delivered them completely. What about the faith? थोड़ी देर पहले गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से छुड़ाया। उसके बाद कहते हैं मुझे सिर दर्द है, कुछ हो रहा है, ऐसे करके कहते हैं। Where is the works of faith? विश्वास की क्रियाएं कहाँ हैं? Jesus said, be it according to your faith. यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तुझसे हो जाए। Now this man goes, ये व्यक्ति जाता है, come around. घूम करके आता है। Jesus, I'm not able to see. Still, I'm not able to see. यीशु मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। A blind man came to. Be it according to your faith. तो यीशु मसीह के पास एक अंधा व्यक्ति आता है। यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास के You are अनुसार। healed according to your faith. तेरे विश्वास के अनुसार तुझे Now this चंगा man है। goes there. ये व्यक्ति इधर Come around. फिर क्या आता है? Jesus, still I'm not able to get my sight back. यीशु मसीह अभी भी मेरा नजर ठीक नहीं है। And where is the faith? मेरा विश्वास किधर Where है? is that work? वो का- In order to see that faith working, we need to do works accordingly. उस विश्वास को काम करते हुए देखने के लिए हमारे अंदर क्रियाएं होना चाहिए। Praise be to God's name. प्रभु के नाम So पे- God says, I know thy works. परमेश्वर कहता है तेरी क्रिया तेरे कामों को I मैं know जानता thy हूँ। works of faith. तेरे विश्वास के कामों को मैं जानता Praise हूँ। be to God's name. प्रभु के नाम Now, पे- secondly, God says, I know thy labor. तेरे परिश्रम को जानता हूँ। First Thessalonians, same verse, first chapter, 3rd verse says, I know the labor of thy love. पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय का 3रा वचन में कहता है कि तेरे प्रेम के परिश्रम को मैं जानता हूँ। I know the labor of thy love. तेरे प्रेम के परिश्रम को मैं जानता हूँ। Read that verse. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord. Now, when we speaks about the love, जब प्रेम के बारे में आप the बात करते labor हैं, of love, प्रेम का परिश्रम। 1 John 4th chapter 19th verse says, it was God who loved us first. पहला यूहन्ना 4 का 19 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया। Read that verse. Love him because he first loved us. What is 1 John 4:19. हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Now here we read about the Lord, God, the love of God, which He showed us first. हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं जिससे उसने हमारे ऊपर पहले Now दिखाया। we know that God loved us and blessed us in so many ways. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हुए कई रीति से हमें आशीष He दिया। gave us His only begotten Son because of that love which He had on us. हमारे ऊपर के उस प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। Now when God says that I know thy labor of love, जब परमेश्वर कहता है मैं तेरे प्रेम के परिश्रम को जानता हूँ, that we need to do in our life. हमारे जीवन में करने वाला जो विषय है। So today, according to this word, we need to examine how's the labor of our love. हमारा प्रेम का परिश्रम किस प्रकार है, इस वचन के अनुसार जांच कर In देखेंगे। Hebrews 6th chapter verse 10 says that God will not forget, that God is not unrighteous God to forget our work and labor of love. इब्रानी के पत्री 6 का 10 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रेम के परिश्रम को भूलने के लिए अधर्मी नहीं है। Please read that verse 6:10. For God is not unrighteous to forget your works and labor of love, which ye have showed towards his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। So here we read about that He is not an unrighteous God to forget the labor of your work. यहाँ पे लिखा है Love. परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे प्रेम के परिश्रम को भूल जाए। God is not unrighteous God, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। but we need to examine अपने जीवन को हम जांच के how देखें much labor we are putting into this love. इस
प्रेम में कितना परिश्रम हम डालते हैं how much we are laboring for God because of that love that which God has shown to us. हमारे प्रति परमेश्वर दिखाए इस प्रेम के खातिर हम कितना परिश्रम करते हैं। 1 Corinthians, reading 1 Corinthians verse 58 when we read. 1 Corinthians 15:58. पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन. Please. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. तो हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Praise be to God's name. प्रभु के नाम की स्तुति The हो। word of God says your labor is not in vain in the Lord. मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। All the labor we put in God, परमेश्वर में जो भी हम परिश्रम रखते हैं, all the labor we go through because of the love of God, परमेश्वर के प्रेम के खातिर जो परिश्रम हम करते the हैं, word of God says it will not go in vain. प्रभु कहता है कि वो व्यर्थ नहीं होगा। The reward will be given to us. हमारे लिए परमेश्वर प्रतिफल देगा। Very soon our Jesus is going to appear in His glory with the reward. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी प्रतिफल लेके बीच आकाश में प्रकट हो We need जाएगा to be found worthy for that reward. और उस इनाम उस प्रतिफल के लिए हम योग्य होना चाहिए। And to get that reward, we need to do the labor of love. और उस प्रतिफल पाने के लिए हमें प्रेम से परिश्रम करना है। Praise be to God's name. प्रभु के नाम You की know, स्तुति when हो। we read about the life of Saint Paul, संत पौलुस के जीवन के बारे में हम पढ़ने in से 2 Corinthians 11 chapter verse 24 onwards when we read, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 24 वचन से नीचे पढ़ने से we read about a small list that he suffered for God. मसीह के लिए जो परिश्रम और जो कष्ट उसने उठाया उसके बारे में एक छोटी सूची You know, देते हैं। Jesus, he was only scourged for once, 39 stripes. यीशु मसीह को एक ही बार 39 कोड़े लगाए But गए। when we read about Saint Paul, जब संत पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं 5 times he was scourged. 5 बार उसे कोड़े लगाए। 5 times. 5 For बार। Jesus, he was scourged 5 times. यीशु के लिए यीशु के लिए 5 बार उसने कोड़े लगाए गए। and the list goes on. इस प्रकार उसका सूची जाता He है। says, thrice I was beaten with the rods. 3 बार मुझे भेद लगाए। Once I was stoned. एक बार पथरवाह किया Thrice I गया। suffered shipwreck. 3 बार जहाज के A दुर्घटना। night and a day I have been in the deep. एक रात और दिन में समुद्र में काटा। In journeying, बार-बार यात्रा करने in में। perils of water, नदियों की जोखिमों in में। perils of robbers, डाकुओं की in जोखिमों में। perils by my own countrymen, जाति वालों की जोखिमों in में। perils by the heathens, अन्य जातियों की जोखिमों in में। perils in the city, नगर की जोखिमों में। perils in the wilderness, जंगल की जोखिमों में। perils in the sea, समुद्र की जोखिमों में। among false brethren. झूठे भाइयों के And the बीच list जोखिमों goes में। on. इस प्रकार सूची You know, he जाती है। suffered a lot for God. मसीह के लिए उसने अधिक परिश्रम किया। He is the only man in the New Testament that who suffered much for God. नए नियम में ये एक ही व्यक्ति है जो मसीह के लिए अधिक दुख उठाया। You know what is the reason behind all these sufferings, going through this suffering? इस सारे कष्टों में से गुजरने के लिए क्या कारण है? The answer he gives in 2 Corinthians 5th chapter 14th verse. इसका जो जवाब है दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का The 14 reason he gives for all this suffering for joyfully, the reason he gives in 2 Corinthians 5th chapter verse 14. दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय का 14 वचन में ये सारी कष्ट उठाने का वो कारण बोलता है। Please read. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that Enough. क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। So the reason he gives the love of God, the love of Christ constraineth me. यहाँ पे कारण वो कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता If है। you don't have the love of God in you, you will not suffer for him. मसीह का प्रेम तुम्हारे जीवन में नहीं होने से तुम God कष्ट says, उठाओगे। I know thy labor. When God says, I know thy labor, he speaks about the labor of love which we are showing. परमेश्वर जब कहता है कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, हमारे प्रेम के परिश्रम के बारे में कहता Dear है। people of God, we need to introspect our life, how much we are laboring in love in these इन days. दिनों में अपने आप को जांच कर हम देखना चाहिए कितना अधिक हम प्रेम को परिश्रम करते We हैं। may not be suffering for God because we are lacking the
love of God in our life? हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम की घटी होने के कारण प्रभु के लिए हम कष्ट नहीं Why we are उठाते? not able to take the burden of God in these इन days? दिनों में प्रभु का बोझ हम क्यों नहीं उठा Why पाते? we are running after the things of this world? संसार की चीजों की पीछे Why we are carrying the different burdens, strange burdens in our life? हमारे जीवन में पराये बोझ को हम क्यों उठाते Why हैं? we are carrying the burdens of this world in our life? हमारे जीवन में संसार का बोझ क्यों उठाते हैं? Why we are carrying the burdens of sin upon our shoulders? हमारे कंधों के ऊपर पाप का बोझ क्यों Why उठाते we हैं? are not giving our shoulders, why we are not giving our youth to take the burden of God? हमारे कंधे और हमारे जवानी को हम क्यों प्रभु के लिए नहीं देते? Why we are wasting our life taking all other strange burdens in our life? हमारे जीवन को और अधिक अन्य भोजन को लेके हमारे जीवन को क्यों हम बर्बाद Because करते we हैं? have the love of this world in our life and we have the love of the people in our life. That's why we are carrying those burdens in our life and we are not unable to take the burden of God in our life. संसार का प्रेम, मनुष्य का प्रेम हमारे जीवन में होने के कारण और अन्य भोजन को हम उठाते हैं, प्रभु का बोझ हम नहीं उठाते। That's why we see some very few people coming to the church in these days. इन दिनों में बहुत कम लोग प्रभु के घर में आते हैं। Many people, they come to church with so many other desires in their mind. कई लोग कलीसिया में कई और आग्रह के साथ With a different mentality, with a different mindset, they come to the meetings. कई प्रकार के अलग मनोभावनाओं के साथ प्रभु के घर But में only आते हैं। few people, they come for Jesus. बहुत कम लोग यीशु मसीह के Only आते few हैं। people, they want to go to heaven in the rapture. That's why they're coming for in the meetings. बहुत कम लोग प्रभु के आगमन में उठाने जाने के लिए मीटिंग में आते हैं। Others, they are coming for the deliverance. दूसरे लोग छुटकारे के लिए आते Others, they हैं। are coming. Many people, they are coming for the healing. कई लोग चंगाई के लिए आते हैं। Many, they are coming for the blessings. कई लोग आशीषों के लिए आते हैं। Many eat and drink. कई लोग खाने पीने के लिए आते But हैं। only few people, they are coming for God. सिर्फ थोड़े लोग प्रभु के लिए आते They only हैं। need God in their life. उनके जीवन में यीशु They only चाहिए। need the love of God in their life. उनके जीवन में प्रभु का प्रेम Such चाहिए। people, they are filled with the love of God. इस प्रकार के लोग प्रभु के प्रेम से भरे हुए होते Praise be to हैं। God's name. प्रभु के नाम की Sad स्तुति to हो। say, last Sunday it was a day of supper, and so many people, they came for the meeting, and there was no place for the sitting. अब But today, where are those people? पिछला सप्ताह भोजन था, इसलिए बहुत सारे लोग आए। वे लोग इस सप्ताह किधर है? You know, recently I called one brother. 2-3 days back, I called one brother, 2-3 दिन पहले मैंने एक भाई को बुलाया। and we were discussing about what we preached on Good Friday and Easter service. गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन क्या प्रचार किया करके आपस में हम शेयर कर रहे थे। And I know that place because I've been in that place. I've served in that place. उस जगह के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने उधर सेवा किया है। And I asked him how many people they came for the meeting. मैंने पूछा कितने लोग मीटिंग में आए? You know, first thing what he told, पहला बात उसने क्या कहा? because it was supper day, that's why so many people came. उसने कहा अब भोजन दे रहे थे इसलिए बहुत सारे लोग आए। This testimony we are getting, हमें इस प्रकार तो गवाही मिलती है। this kind of testimony we are getting. इस प्रकार का एक गवाही हमें मिलता है। People, they are coming. Jesus also told them, because you are coming to me for the bread and this drink, you are coming to me for the eating and drinking. यीशु मसीह कहता है तो मेरे पीछे खाने पीने के लिए आते हो। When we have something special occasion, we'll come. All the people will come for the meeting. But what about the regular Sundays? Will not be able to come. See how many places is left vacant here. कई कुछ खास दिन होने से लोग भर कर आते हैं और साधारण दिनों में लोग किधर हैं? You know what thing is lacking? हमारे जीवन में किस बात की घटी है? The love of God. परमेश्वर का We प्रेम। don't have the love of God. प्रभु का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। So many youths didn't come for the meeting. कई जवान मीटिंग में आज नहीं आए। So many believers didn't come for the meeting. कई विश्वासी लोग आज मीटिंग में नहीं आए। Last week it was so tiring, brother. So now we are declining now. Now many people, they are falling back. कहते पिछला सप्ताह बहुत थक गए इसलिए लोग घट जा रहे थे। कितना लोग प्रभु भोजन लिए वो लोग हाथ खड़ा करो। प्रभु भोजन लिए वो लोग हाथ खड़ा करो। कहाँ तक है? मीटिंग में आए नहीं आप लोग? मीटिंग के टाइम में नहीं आए आप लोग? चले गए? You have lost that experience of that communion. उस प्रभुज का जो अनुभव को आपने खो दिया। Next time, be very careful and not allow anyone to sit for this communion. अगली बार बहुत सख्त होएगा। किसी को मैं You people are playing with your life. And not only playing with your life, you are playing with the ministry also.
आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते इतना ही नहीं, सेवा के साथ भी खेलते हो। Be very careful, I'm telling you. I'm इसलिए warning you for this thing. मैं आप लोग को चेतावनी देता हूँ, सावधान रहिए। Don't come next time. Don't come to me and ask for the communion. अगली बार आके हमारे लिए प्रपोज दे दो करके ना पूछे। And if you not come for the meeting, if you are not strict, if you are not right enough, I'll not allow anyone to sit for the communion आप service. सही नहीं होने से आप में से किसी को भी मैं कम्युनियन में बैठने Don't नहीं। think that something is hidden from us. Nothing is hidden from us. ये बात मत We know सोच- everything. ये मत सोचिए कि ये सब बातें हमसे छुपे हुए। We know हम your ये सब lifestyle. बातें- आपके जीवन शैली को हम जानते हैं। What you are doing outside, that we know. बाहर आप क्या करते हैं वो भी हम जानते So हैं। don't think that doing all those rubbish things, you'll come and sit for the communion. सब अनावश्यक बातों को करके आगे कम्युनियन में बैठ जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। This was the last time that I showed that mercy. ये आखिरी बार है कि मैंने आपको दया दिखाया। Next time that mercy will not be shown to you because it's about the communion. It's not a small thing. It's not a playful thing. अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये कोई खेलने वाली बात नहीं है। We are lacking the love of God. प्रभु के प्रेम में हमें जीवन में घटी Today itself, see, how many of you can say boldly that today my worship was pleasing in the sight of God? That I'm satisfied with my worship. बोलो हाथ खड़ा करो। आज भी कौन कह सकता है कि मेरा जो आराधना मैंने किया परमेश्वर को संतुष्टि दिया है? ऐसे कहने वाले हाथ खड़ा करें। बोले क्या करने आए फिर मीटिंग? आपकी आराधना प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य था, और मैं खुद भी संतुष्ट हूं मेरी आराधना से। लोग हाथ खड़ा करो, देखते हैं। चार लोग, बाकी क्या करने आए? प्रभु भोजन कितना लोग लिया? मजाक है हमारे लिए, ये आत्मिक जीवन मजाक है हमारे लिए, चर्च बोलने से मजाक है हमारे लिए। हम क्यों मीटिंग में आए? फिर हम क्या करने आए मीटिंग? हम केवल ड्यूटी के लिए आए, नाम के लिए आए, संडे है हमको जाना है, विश्वासी है, इसके लिए आए, हम आराधना करने के लिए नहीं आए। वचन के अनुसार हमारा तुलना दो लोगों से किया गया है, पता है? यही अवस्था हमारे जीवन में रहेगा ना, तो वचन के अनुसार दो के साथ तुलना किया गया हमारा। कौन है वो बोल सकता है? हाँ, पढ़ो वचन। जेम्स में पीटर, ना हमको लगता खेल है। हाँ पढ़ो, दूसरा पत्रस 2:22 पढ़ो। सब लोग अपना बाइबल को खोल के पढ़ लेना। यही है हमारी अवस्था, हम यही है, हम मनुष्य नहीं है, हम इंसान नहीं है। पढ़ो। But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soap that was washed to her, following in the mire. ना कि कुत्ता अपनी छान की और दोई भी सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हाँ, according to the word of God, we are compared with these two things. प्रभु के वचन के अनुसार इस दो जानवर के साथ अपने को तुलना किया। हाँ, backslidden, fallen back to our own ways. अपने खुद के मार्गों में जाना। What for you prayed? God prayed for me from me last week. पिछले सप्ताह मुझसे क्यों प्रार्थना कराया? हाँ, there is no change in your life. जीवन में कुछ बदली तो है नहीं। There is no change in your inner man. तुम्हारे भीतरी मनुष्य में कोई For बदलाव the नहीं name's है। sake, you people are coming for the meeting. सिर्फ नाम के लिए मीटिंग में आते There हो। is nothing of the kind of believer in your life. विश्वासी के लायक कोई जीवन नहीं है। हाँ, you are coming for name's sake only. सिर्फ नाम के लिए आप आते हो। नाटक करने आते हो, लड़ाई झगड़ा करने आते हो, चुगलियां करने आते हो, तुमको यही काम खेतों में। विश्वास में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए नहीं आते। अगर ऐसा है तो कितना लोग आराधना किया? बोलो, आज का आराधना किसके खाते में जाता है? बोलो, क्या फायदा हुआ? इतना लोग प्रभु को क्या फायदा हुआ? हमको तो चलो फायदा छोड़ो मत, प्रभु को तुमसे क्या फायदा हुआ? आज का दिन तुमको देख के प्रभु को लाभ क्या हुआ? बोलिए। दिस इज आवर स्टेट। हमारा हालत ऐसा है। हाँ, दिस इज आवर स्टेट, दिस इज व्हाट वी आर।
वैसे ही हम ऐसे ही हैं। We are not doing it for the labor of love. हम प्रेम की परिश्रम नहीं करते हैं। We are laboring, but without love we are laboring. परिश्रम तो करते हैं प्रेम के बिना। You know, the word of God says, if it be wicked, why he is laboring in vain? यदि दुष्ट हो तो क्यों व्यर्थ परिश्रम करता है? Read that verse in Job 9:29. अय्यूब 9:29। हाँ, सब लोग पढ़ना। Job 9:29. If I be wicked, then why then labor I in vain? हाँ, मैं तो दोषी ठहरूंगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं? हाँ, यहाँ लिखा I be wicked, मैं दुष्ट हूँ, तो मैं क्यों बेकार में परिश्रम करना? अब बेकार में समय व्यर्थ करके अपना आया है। यही आप कुछ घर में कर सकते थे, किसी के घर में जा सकते थे, रिश्तेदार को मिल सकते थे। आप अपना समय व्यर्थ करने के लिए आए, and you being becoming wicked in the sight of God. अपने समय बर्बाद करने आए हो और प्रभु की दृष्टि में आप We are laboring, but without love you are laboring. आप परिश्रम तो करते हो प्रेम के बिना। You labor and come for the meeting, but more of becoming righteous, you are becoming wicked these days. आप परिश्रम करके मीटिंग में तो आए हो, आप अच्छे बनने के बजाय और दुष्ट हो जाते हो। What for we came for the meeting? मीटिंग के लिए मीटिंग में हम We क्यों came आए? to worship God in the meeting. प्रभु की आराधना करने के लिए हम मीटिंग But में आए। whole concept is lacking in our life. That whole thing is lacking in our life. और पूरी बात हमारे जीवन में घटी पाई जाती We है। are not able to worship God. प्रभु की आराधना हम नहीं कर पाते। We are not able to love God. प्रभु को प्रेम नहीं कर Where is the पाते। love of God in our life? हमारे जीवन में प्रभु को प्रेम We नहीं say है। outwardly we love you Jesus, we love you Jesus, but when it comes to the terms of working, where is that love in our life? हम प्रभु से कहते हैं कि यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पर जब काम करने का समय आता तो प्रेम किधर है? When it comes to the showing love to God, where is that love? जब प्रभु को प्रेम दिखाने का समय आता तो प्रेम किधर है? When there is time to feel in the love of God, where is that love in your life? जब प्रभु के प्रेम में भरने का समय आता तो प्रभु का प्रेम किधर है? You are full with the love of this world. इस संसार के प्रेम से भरे You are हुए full हैं। with the lust of your eyes. तुम्हारी आंखों की अभिलाषा से भरे You हुए हैं। are full with the lust of this flesh. शरीर की अभिलाषा से भरे हुए That's why हैं। there is no love in your life. इसलिए आपके जीवन में प्रेम नहीं है। That's why the strange loves are working in your life. हमारे जीवन में पराये प्रेम काम करता है। Besides the love of God, every other love is working in your life. प्रभु के प्रेम को छोड़ के बाकी अन्य प्रेम काम करता The है। love of your boyfriend, girlfriend, and this and that, the strange things, worldly and the fashion, every kind of love is seen in your life besides the love of God. यीशु मसीह को प्रेम को छोड़कर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दुनियादारी और सारी फैशन दिखाई देती है। You are sure that then you are saying that we love God. और फिर भी कहते हैं कि मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ। Why we are coming for the meeting? मीटिंग में हम क्यों आते You हैं? need to ask this question to yourself. अपने आप से सवाल करना चाहिए। आप सच में एक विश्वासी ना अपने आप से ये सवाल पूछना कि मैं मीटिंग क्यों जा रहा हूँ। ये खुद से एक सवाल पूछना। अब संडे उठते हो ना, मैं आज मीटिंग क्यों जा रहा हूँ करके सवाल पूछना। खुद को जवाब दे सके तो मीटिंग में आना, नहीं तो घर में बैठना। We are not here for the attendance. हमको अटेंडेंस मिलकर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, कोई हमको प्राइज नहीं देने वाला कि हम हर संडे जाएंगे तो प्राइज मिलेगा। No, we are coming for to worship God in the presence of God. प्रभु के समूह में आप आराधना करने के लिए आप आते हो। And if that thing is lacking in your life, what for? What is the use of coming to the meeting? यदि ये बात आपके जीवन में घटी पाई जाती तो क्यों मीटिंग With में what आते हो? mind you are coming in the presence of God? तो With कौन से मन के साथ आते हो? कौन सी मनसा के साथ आप मीटिंग में आते हो? We need to examine our life in these days. अपने जीवन को इन दिनों में हम जांच I करनी felt चाहिए। so bad just because we didn't, nobody worship God. I felt so bad. Out of that frustration, I'm speaking all these things. आप लोग भी ठीक से आराधना नहीं किया, वो दुख के साथ ही मैं ये बातों को कह रहा हूँ। हाँ, आपको गाना गा के आत्मा में भराने के लिए, अब जब भी मैं गाना गाऊंगा ना, सोच लेना कि आपको जबरदस्ती आत्मा में भरा रहा हूं। ये सोच लेना, मैं जब भी गाना गाऊंगा ना आत्मा में भराने के लिए, सोच लेना आपको जबरदस्ती आराधना करवा रहा हूं। मैं डमरू बजा रहा हूं, आप कूदने के लिए मैं गाना गा रहा हूं। ये कभी भी मन में सोच लेना। अगर आप प्रभु का सच में आराधना करने वाले लोग हैं ना, 1000 बार बोल दिया, कोई बोलने का जरूरत नहीं, वचन भी पढ़ा दिया, उनको वचन भी पढ़ा दिया। जो अभिषेक तुमने पाया है, तुमको चाहिए नहीं कि तुमको कोई सिखाए। तो ये सोच लेना, आप जिस दिन आराधना नहीं करते हो उस दिन मैं गीत गाता हूं ना, सोच लेना आप जबरदस्ती आराधना कर रहे हो। आपके अंदर प्रभु का प्रेम नहीं है। आपके अंदर प्रभु के प्रेम को जगाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है आपको।
तभी आप अभिषेक मरेंगे, तभी आप आत्मा में मरेंगे, अन्यथा नहीं है। नहीं है तो प्रेम नहीं, आपके जीवन में अभिषेक नहीं है। अभी मैं बोलूंगा ना, आप सब लोग आंख बंद करके 5 मिनट प्रार्थना करके अभिषेक में भरो, केवल 3 या 4 लोग, हार्डली 5-6 लोग, बाकी सब लोग टाइम पास करेंगे। और ये आप भी जानते हो, ये है हमारे आत्मिक जीवन का स्टैंडर्ड, ये है हमारी आत्मिक अवस्था। हम चर्च तो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। अब क्या करने आए चर्च? आराधना करने आए? क्या करने आए? बातें करने आए, चुगलियां करने आए, लड़ने आए? यही करने के लिए आए ना? इसलिए तो आपके आराधना नहीं है। हम इस चीज को बदलना बहुत जरूरी है। हम एक धोखे में जीवन बिता रहे हैं, while we are living in a delusion. धोखे में जीवन बिता रहे हैं। Devil is very subtle. शैतान बहुत चालाक है। Don't think that he will easily let you go off. शैतान आसानी से आपको जाने देगा, ऐसा ना Dear सोचिए। people of God, we need to change this attitude in our life. प्यारे परमेश्वर के लोग, इस प्रकार की भावना If हमारे you जीवन are से coming for बदलना the चाहिए। meeting, come with that pure mind and heart. ये मीटिंग में आ रहे हो तो आपका हृदय और आपका मन शुद्ध होना Don't चाहिए। keep anything in your mind that is not pleasing in the sight of God. परमेश्वर के समूह में जो प्रसन्न योग्य नहीं है, उस बातों के अपने मन में रखते हुए Don't नहीं come आए। with that mind in the presence of God. इस प्रकार की मनसा के साथ प्रभु के समूह में नहीं आए हैं। You will not be blessed. And instead of that, rather you will be cursed in the sight of God. You will become a cursed in the sight of God. इस प्रकार की हालत में आने से आप आशीषित नहीं बल्कि प्रभु के समूह में श्रापित हो जाओगे। Outwardly, you may be seen very good, but inwardly your mind, God conquered, the word of God says. बाहरी तौर से आप बहुत अच्छे होंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हृदय को जांचने वाला है। God sees your mind. God sees your desires, and accordingly He will bless you. परमेश्वर आपके मन की आग्रह को देखता है, उसके अनुसार आपको आशीष करेगा। So, besides keeping this in your mind, I'm going for the worship. You should not come with anything in your mind. आराधना करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इसके अलावा आपके मन में और कोई बात नहीं होना We should चाहिए। have the love of God when we come to the presence of God. प्रभु के समूह में आने से हमें प्रभु का प्रेम होना The चाहिए। love, the cords of love should draw us near to God. और प्रेम की डोरियों से प्रभु अपने आप खींचना चाहिए। Reading from Songs of Song, 1st chapter, 3rd verse. श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय का 3रा वचन। No, please, 4th verse, please. चौथा वचन। Draw me, we will run after thee. हाँ. The King hath brought me. Enough. मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। When God, we need to pray in these days that draw me and we will run after you. इन दिनों में हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे खींच ले। The cords of love should draw us. प्रेम की डोरियां हमें खींचना It's not should be a compelling cords that should draw us to the meetings. और जबरदस्ती हमें मीटिंग को खींचने वाली रस्सियां नहीं होना चाहिए। It should not be strange cords that should bring us to the presence of God. और अन्य रस्सियां हमें प्रभु के सम्मुख में नहीं लेके आना We चाहिए। are here to see others. और उनको देखने के लिए हमें डर है। Sad to say, मैं अभी सच बोलूंगा ना फिर तो आप लोग को शर्म आएगा। आप कौन सा मन से आते हैं ना, मैं जानता हूँ, एक को मैं जानता हूँ। आपको आपके हाव भाव से पता चल जाएगा कौन से मन से मीटिंग में आते हैं। ये दूसरे चर्चों में होता है, हमारे चर्च में नहीं होगा। दया करके आप उस मनसा के साथ आ रहे हो, मीटिंग मत ही आइए प्लीज। आप कहीं और जाओ, दूसरा चर्च में जाओ, हमारा चर्च में नहीं आओ प्लीज। आप आत्मिक मन के साथ आराधना करने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु का राज्य में जाने के लिए, उस मनसा के अलावा दूसरा कुछ और मन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मीटिंग मत आइए। हमको नहीं चाहिए इतना भीड़। कोई बात नहीं, थोड़ा लोग आएंगे तो कोई बात नहीं। We need to change this mindset, please. We need to change this thing. इस प्रकार की बातों को नहीं तो हमारे मन को बदलना It चाहिए। should be only love that should draw us near to God. सिर्फ परमेश्वर का प्रेम हमें उसकी ओर खींचना चाहिए। No other thing should bring us to God. कोई दूसरा कोई बात हमें प्रभु की ओर नहीं When we are आना। the child of God, when we are spirit baptized, it should be only love that should draw us. यदि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिए गए हैं तो प्रभु का प्रेम हमें खींचना चाहिए। इतना साल से प्रभु को जान के क्या किया तुम?
क्या किया हमारे जीवन में इतना साल प्रभु को जानने के बाद, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन? ऐसा ही है हम। जिस गड्ढे से प्रभु उठाए उसी गड्ढे में हम। क्या चेंज है? कि चर्च तमाशा करने का जगह नहीं है, फिर तुम तमाशा करने का जगह नहीं है। अपना घरों में करो, बाजारों में करो। अगर तुम तमाशा बन चुके हो तो बाहर करो, फिर तुमने नहीं करना। और मैं रहते समय तो बिल्कुल करना नहीं, फिर देखेगा नहीं मैं किसी को भी। आत्मिक बन के आओ। कितना कोशिश कर रहे हैं, रात दिन आग्रह कर रहा हूं आप लोग, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। इतना कोशिश कर रहा हूं, इतना आग्रह कर रहे हैं। आप वही शारीरिक मन के साथ, शारीरिक बातों के साथ आते हो। अब मत आइए प्लीज, अब चले जाइए, आपको जरूरत नहीं आपका। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं। संत पौलुस इतना कष्ट उठाया प्रभु के लिए। वो बोलता है प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है, ये कुछ भी नहीं है बोलते हैं। रोमियो 8 अध्याय के बीच में इतना बड़ा लिस्ट बोलता है, बोलते ये कुछ भी मुझे प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये कुछ भी, मृत्यु हो, जीवन हो, कोई भी हो, मुझे प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कहां है तुम्हारे जीवन में प्रभु का प्रेम? कहां? हम बोल सकते, कितना लोग बोल सकते हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरा हुआ है? हम प्रभु के लोग, हमारे अंदर प्रभु का प्रेम भरे होना चाहिए। पुराने नियम का संत दाऊद कहते हैं कि मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा हृदय उमड़ रहा है, प्रभु का प्रेम से उमड़ रहा है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? किस मार्ग में चल रहा है? हाँ, हमारा अवस्था, हम नाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का लोग होते हैं, हम नाश की ओर जा रहे हैं। फिर तो मैं आए करने, क्या करने के लिए आए तो हम क्या ही कर रहे हैं। वो दुख से बोल रहे हैं, इतना दुख हो रहा है ना, मैं सच में पता नहीं है, मैं अभी भी अपने वर्ड्स कंट्रोल कर रहा हूँ। बहुत दुख हो रहा है। पिछला हफ्ता तो प्रभु भोजन लिया, एक हफ्ता में हमारी अवस्था ये है। यही मैंने कल कैरी मीटिंग में बोल रहा था। एक हफ्ता में आप सोच के देखो अपने कौन से मन से प्रभु भोजन लिया। आप सोच के देखिए, कूद रहे थे आप पिछला हफ्ता, कितना लोग कूद रहा था, आज हिले भी नहीं। क्या ब्रदर, सही है ना? कूद रहे थे पिछला हफ्ता। प्रभु भोजन देने के समय में आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा दिल टूट गया, चलो ठीक है। कहां गया वो अनुभव? किधर गया? बोलिए सिस्टर साहिब। एक कौन सा मन से लिया प्रभु भोजन? एक हफ्ता के लिए, एक हफ्ते के वैलिडिटी। ऐसे है तो रोमन कैथोलिक के जैसे तुमको हर हफ्ते प्रभु भोजन रखना पड़ेगा, नहीं है? तुम बेदार होने के लिए फिर हर हफ्ता रखना पड़ेगा। फिर तो एक हफ्ते के बाद हमारा स्टैंडर्ड उतना ही, एक हफ्ता हम ठीक रहते, अगला मीटिंग पूरा खत्म। बदलना जरूरी है, इस चीज को बदलना है। बदल जाओ, समय रहते बदल जाओ। आगे समय ने हमारे लिए क्या रखा है कुछ पता नहीं है, हमारे जीवन में क्या रखा है पता नहीं है। एक बादल, हमारे ऊपर एक बादल मंडरा रहा है वापिस लॉकडाउन का। सोच लो, अगर आपको पढ़ना है, सब लोग तो, सबको नुकसान नहीं होगा। तो मीटिंग्स बंद हो गए ना, सबको नुकसान नहीं होगा, थोड़े लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि थोड़े लोग को आग्रह है। लेकिन वापिस आप लोग भी जानते, न्यूज पढ़ते हो, ये लॉकडाउन की परिस्थितियां वापिस आ रही है। क्या करोगे मीटिंग बंद हो गया तो, अगर यही अवस्था में रहे तो? परमेश्वर के प्यारे लोगों को बदलना जरूरी है। हम बदलेंगे नहीं है इस अवस्था में, हम कहीं भी जाने वाले नहीं। प्रभु का राज्य में तो कभी भी नहीं जा पाएंगे। प्रभु को बदलना चाहिए।
रो रो के प्रार्थना करना, उसके साथ कामों को भी दिखाना। राहाब के बारे में पढ़ते हैं, राहाब योशुआ 2 अध्याय का 11 वचन में हम पढ़ते हैं राहाब के बारे में। राहाब एक वेश्या, अच्छी स्त्री नहीं है, राहाब एक वेश्या, अच्छी स्त्री नहीं है, लेकिन उसकी गवाही सुनो क्या बोलती है। बोलती जब हमने प्रभु की बातों को सुना दिल पिघल गया, बोलता है दिल टूट गया, बोलती है। इंग्लिश में लिखा हार्ट मेल्टेड करके लिखा है, पिघल गया, दिल पिघल गया, मन पिघल गया। एक ही बार सुना हमने, और वेश्या तब भी प्रभु के बारे में सुना नहीं, बुराई बुराई बुराई, पाप पाप पाप। पहली बार प्रभु के बारे में सुना, वो बोलती मेरा मन पिघल गया, मेरा हृदय टूट गया। पढ़ो वचन। ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जीव में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये सुनते हमारा हृदय पिघल गया, बोलते हैं मन पिघल गया। एक ही बार सुना, पता नहीं किससे सुना होगा, समझ नहीं पाई कि जीवित प्रभु इसका सामना नहीं कर पाएंगे, इसके लिए इसके सामने झुकने से अच्छा है। हम कितना सुनते हैं, कितना प्रचार सुनते हैं, कितनी बातों को सुनते हैं, सेवक लोग की कितनी अच्छी सलाह को सुनते हैं, मानते हैं। कई लोग सेवक लोग को मूर्ख समझते हैं, सलाह ले लेंगे, हाँ ब्रदर जी हमको ऐसा क्या करना है, ब्रदर जी तो ये परेशानी हो रहा है हमको, हमारे क्या सलाह ले लेंगे, आके हमारा समय खराब कर देंगे, समय व्यर्थ कर देंगे, लेकिन करने के लिए आएंगे तो अपने ही करेंगे। हम क्या मूर्ख है क्या मेरा समय नहीं, तुम्हारा समय, मेरा समय नहीं। मुझे बिठा के जब तुम कुछ पूछ रहे हो तो करो उसके अनुसार। करना जब तुमको अपना ही है तो फिर हमको क्यों पूछ रहे, फिर हमको क्यों बीच में डाल रहे। तुम्हारा ही मर्जी चलना है, तुम्हारा ही अनुसार होना है, तो फिर हम क्या है, क्या समझ के रखा हमको। तू मनुष्य है, मैं मनुष्य नहीं। एक ही बार सुना हो, मेरा मन पिघल के बोलती है, मेरा दिल टूट के बोलती है। हमारा हृदय इतना कठिन है, कठोर है, इतना बड़ा पत्थर है, टूट ही नहीं रहे। हमको प्रभु का प्रेम चाहिए, इस प्रेम के बिना कुछ भी नहीं, मरा हुए हम, ये प्रेम के बिना मरा हुआ है। ये प्रभु का प्रेम ही है जो हमको प्रभु के सम्मुख में जीवित रखेगा। परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए किया है ना, प्रेम की वजह से किया। वो केवल एक वजह है, प्रेम। उसकी वजह से प्रभु ने किया है सब कुछ हमारे जीवन में। उस प्रेम के बदले हम कुछ भी देने के लिए नहीं है हमारे पास। प्रभु हमको प्रेम करते रहे, हम प्रभु को प्रेम नहीं करेंगे। हमको इसको प्रेम करना, उसको प्रेम करना, इसके पीछे जाते, उसके पीछे जाते हैं। खेतों में जोड़ियां बनाने आते हम, खेतों में जोड़ियां बनाने आते हम। ये क्या जोड़ी बनाने वाला क्यों मैट्रिमोनियल ये है क्या, प्लेस है क्या, जगह है क्या ये? इसको देख के आप उसको पसंद कर लिया, इसको देख के आप उसको पसंद कर लिया, फिर तो मुश्किल ही है क्या? यीशु पसंद नहीं आता, लोग पसंद आ रहे, लड़कियां पसंद आ रही, लड़के पसंद आ रहे, यीशु पसंद नहीं आ रहा। क्या सही है ब्रदर? यीशु नहीं पसंद आ रहा बस। आज तक मेरा सेवा में, आज तक मैंने किसी का शादी नहीं कराया, मैं आज तक, क्योंकि बदनाम करने के लिए तुम ही पहले आएगा। तुम दोनों ठीक से नहीं रहेगा, फिर बोलेगा हाँ वो ब्रदर ने करवाया था, हाँ वो सेवक ने करवाया था, वो बेचारा मर भी गया वो सेवक, उसके बाद वो सेवक ने करवाया था। तुम दोनों ठीक से नहीं रह पा रहे, वो बदनाम सेवक हो रहे। इसलिए मैं आज तक मैं किसी का शादी नहीं कराया। मेरे जीवन में फर्स्ट मैरिज देखा इधर आके, मेरे लोकल में फर्स्ट मैरिज, वो भी मेरे आने से पहले हो चुका था। इसलिए फिर तुम जोड़ियां बनाने का जगह नहीं, तो मुझे कोई आके पूछना नहीं है हमारे लड़के के लिए, हमारी लड़की के लिए शादी कराओ।
हाँ, आपको सेवा में भेजना है तो बोलना आके, फिर फेतू में रखेंगे। मेरा लड़की के लिए ढूंढ दो, मेरा लड़के के लिए ढूंढ दो, इधर जाना, और डिपार्टमेंट इधर है, मेरा नहीं। सेवा में उसके लिए नहीं आया, जोड़ियां बनाने के लिए नहीं आया मैं सेवा में, लोगों को तैयार करने के लिए आया। उसके लिए प्रभु बुलाया। मेरी बुलाहट में प्रभु ने किधर भी नहीं बोला जाके टीपीएम का लड़की को टीपीएम का लड़का ढूंढ के देना और टीपीएम के लड़के को टीपीएम लड़की ढूंढ के देना। मेरा बुलाहट में किधर नहीं बोला। बोला होगा सेवक लोगों को तो करवा रहे हैं, मेरा तो नहीं बोला, तो मेरे को कोई आके नहीं बोलना। प्रभु को सम्मुख में आते, अरे आत्मिक मन से आओ भैया, आत्मिक मन से आओ, नहीं तो फेतुम का दरवाजा बंद है तुम्हारे लिए। सीख लो ये बातों को। ये मैं एबीसी आपको एबीसी सिखा रहा हूं, मैं ये खुद से सीखने वाली बात है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। हमको सिद्धता की ओर बढ़ना है, ये सब सीखना नहीं है, लेकिन हम ये सीखा ही नहीं है, हमने यही सीखा नहीं है अभी तक। हम सिद्धता की बातें बड़ी दूर की बातें हैं, तुमको गहराई की बातें बड़ी दूर की बातें हैं। मैं अभी पूछूंगा ना वचन क्या प्रचार किया, नहीं बोल सकते आप, पॉइंट ही नहीं बोल पाएंगे। मैं अभी पूछूंगा तो यही चीज हमको बहुत याद रहती है। ब्रदर ने क्या बोल दिया, उन्होंने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया। वचन पूछो भी नहीं बोलेगा। करके सीख लेना। आप इतना साल से प्रभु को जाना, कुछ तो बदलो। इतना मीटिंग्स में हम आए हैं, इतना प्रचार हम सुने हैं, कुछ तो बदलो। आत्मिक जीवन में बढ़ो, प्रभु को खुश करो। आगमन निकट आ रहा है, हमारा मृत्यु भी निकट आ रहा है, मृत्यु भी निकट आ रहा है, आगमन भी निकट आ रहा है। अपना जीवन को बदल लेना। आइए सब लोग घुटने में बैठेंगे, 2 मिनट सब लोग प्रार्थना करना। 2 मिनट सिंसियर मन के साथ, सच्चे मन के साथ 2 मिनट घुटने में बैठ कर प्रार्थना करना। प्रभु मेरे जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु प्रेम मुझे चाहिए, तो प्रेम में मैं परमेश्वर परिश्रम करना चाहता हूँ। संत पौलुस कहते हैं कि मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, सबसे अधिक परिश्रम मैंने किया है बोलते हैं। तो कितना लोग बोल सकते हैं मैंने फेतु में परिश्रम किया है? इसका गवाही है क्या? बोलो, मैंने फेतु में इतना काम किया है। कोई जवान इधर बोल सकते हैं? कोई जवान है? कोई भी है? मैंने फेतु में इतना काम किया हूं, मैंने फेतु में इतना परिश्रम किया हूं, सेवकों के साथ इतना परिश्रम किया हूं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करें, सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ। कपट के साथ प्रार्थना नहीं करना। कपटी प्रार्थना करेगा भी नहीं। जो कपटी है, झूठा है, वो प्रार्थना नहीं करेगा। सच्चे मन से 2 मिनट प्रार्थना करके देखिए, अपना जीवन को जांच कर देखिए। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे प्रेम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। क्या परिश्रम? प्रभु को पूछ के देखिए, क्या परिश्रम किया है मैंने। आप अपने खुद को सवाल पूछ के देखिए, क्या परिश्रम किया आपने, किसमें परिश्रम किया? प्रभु मुझे तेरा प्रेम से, और मैं तेरे लिए परिश्रम करना चाहता हूं। इस संत पौलुस प्रभु को ताड़ना देने वाला, प्रभु का विरोध में, कलीसिया के विरोध में काम करने वाला ये संत पौलुस जब प्रभु के प्रेम से भर गया तो उसके लिए कष्ट उठाने लगा, उसके लिए मार खाने लगा, उसके लिए निंदा सहने लगा, उसके लिए पथराव होने लगा। ये प्रभु का प्रेम उसको बदल दिया। तब वो प्रभु के लिए परिश्रम करने लगा। अगर प्रभु का प्रेम हमको भर देगा, प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा, हमारे मन में आ जाएगा, हम सारी व्यर्थ बातों को छोड़ के हम प्रभु के लिए कष्ट उठाएंगे, हम सेवा के लिए कष्ट उठाएंगे, हम सेवकों के लिए कष्ट उठाएंगे, सबसे बढ़ के हम प्रभु के लिए कष्ट उठाएंगे। तो आइए 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा प्रेम से मुझे भर दे, प्रभु तेरा प्रेम से प्रभु मुझे बदल दे। तू संत पौलुस को बदल सकता है तो मुझे भी बदल सकता है प्रभु। तेरा प्रेम उसको बदल सकता है तो तेरा प्रेम मुझे भी बदल सकता है। आज इस सुबह के समय तेरे प्रेम से मुझे भर दे। आइए सच्चे हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ, अपने हृदय की गहराई से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा प्रेम से मुझे भर दे, तेरा प्रेम से मुझे बदल दे परमेश्वर। मैं बदलने के लिए चाहता हूँ प्रभु, मैं बदलने के लिए चाहता हूँ प्रभु। आइए मुंह खोलते हुए प्रार्थना करेंगे, आग्रह के साथ, सच्चे मन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस।